ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے امیر. بجلی کا بحران اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں اور آپ کی کالز کا جواب ہمارے پینلسٹ دیں گے کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے کیونکہ آپ ہی کی آواز سے اب نئی حکومت آئی ہے اور آپ ہی کی آواز سے یہ جو بجلی کا بحران ہے یہ ہوپ فلی یہ ٹھیک ہوگا. لیٹس ٹیک دس نیکسٹ کال. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عصمت بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کراچی کی کیا پوزیشن ہے جی؟ آپ کی لوڈ شیڈنگ کتنی ہے وہاں؟ سر لوڈ شیڈنگ جو ریگولر ٹائم ہے 2.5 گھنٹے کا، اس کے علاوہ ہمارا 11:30 بجے رات کو لائٹ جاتی ہے اور اسے اصولاً آنا چاہیے ہے 1:30 بجے، جو کہ رات کو 2 بجے آتی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ ہم اتنے نشے میں کے عادی ہو چکے اس لوڈ شیڈنگ کی کہ اگر ہم سو چکے ہوتے ہیں اور رات میں 3 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے تو لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے، 4 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے تو لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے. نائٹ لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈیول نہیں ہے اور عموماً ایسا ہوا ہے کہ اگر 2 بجے لائٹ آ بھی گئی ہے تو صبح 4 بجے چلی جاتی ہے، اس کے بعد 6 بجے آتی ہے. اوکے تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ نے کراچی کی بتا دی، اس سے آپ کا جواب لیں گے. فیصلہ آباد چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے فیصلہ آباد کی کیا پوزیشن ہے اس وقت بجلی کی؟ سب جب میں نے فون 3 دفعہ ملایا، آخری دفعہ ملایا تو لائٹ چلے گی. اب ٹی وی بند ہے، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں فیصلہ آباد میں لائٹ کا بہت برا حال ہے. سارا دن بجلی نہیں آتی، پانی نہیں ملتا، اور اس میں آپ سولوشن کی بات کر رہے تھے. جی یہ میرے محترم سیال صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیسیکلی جی ایس سی کے آدمی ہے، کنسٹرکشن میرا خیال ڈسٹریبیوشن میں انہوں نے بہت کم دی جا رہا ہے. آپ سولوشن پرابلم ہے ڈسٹریبیوشن کا. اوکے. پاکستان کا سرمایہ دار چاہتا ہے کہ بجلی بھی ہمارے قبضے میں ہو، فیکٹری بھی ہمارے قبضے میں ہو، اور ہم بل بھی. پاکستان میں غریب آدمی بل دیتا ہے، یہ صنعت کار یہ تاجر آزاد بل نہیں دیتے، یہ اور چاند ٹکوں کے پورا مہینہ ان سے بجلی دیتے. اوکے تھینک یو ویری مچ. یہ فیصلہ آباد سے یہ دیکھ لیں ایک ریزرویشن ہے. کالز کھلی ہیں، لائنز کھلی ہیں، پلیز کال کیجیے اور بتائیے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کتنی پرابلم ہے، کیا کیا پرابلم ہے. لیٹس گو ٹو ملتان دیکھتے ہیں ملتان کیا ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ ملتان کی تحصیل ہے. آپ کی کیا پوزیشن ہے بجلی کی؟ جی سر پوزیشن یہاں پر 18 سے 20 سے 22 گھنٹے ہے سر لوڈ شیڈنگ. 18 سے 22 گھنٹے جی بجلی نہیں آ رہی؟ نہیں ہے سر. آپ نے کسی کو کمپلینٹ کی ہے وہاں؟ سر کس کو کریں سر، کوئی سنی نہیں ہماری بات. کس کو کریں؟ تھینک یو ویری مچ. کس کو کمپلینٹ کریں؟ آپ سے اور کریں گے بات، ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کالز لیں. جی لاہور سے ایک کال ہے. ہیلو آئی تھنک دس کال از جسٹ ڈراپ. کالز کیجیے، بتائیے. ملتان تو دیکھ لیا، فیصلہ آباد دیکھ لیا، کراچی دیکھ لیا. ایریاز بتائیے کن کن ایریاز میں. یہ تو بتایا 18 سے 20 گھنٹے یہ بجلی جاری ہے. سیال صاحب یہ تو ایک ایسی بری حالت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کیا 4th ورلڈ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی. اس میں میں تو یہ پھر گزارش کروں گا کہ یہاں فیصلہ آباد ملتان جن ایریا سے یہ بول رہے ہیں ان کے پاس اپنے اصل لوڈ کی پوزیشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ سپوز 12,000 ہے اور 4,000 میگا واٹ کی آپ لوڈ شیڈنگ اوور آل کر رہے ہیں تو 33% ہونی چاہیے نا. 33% مینس کہ ایک 24 گھنٹوں میں کتنی جانی چاہیے؟ 8 گھنٹے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوڈ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہو رہی ہے. سیدھا 2+2. اوکے لاہور سے احمد صاحب ہے. جی احمد صاحب. جی سر میں اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں پہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. تو میرا دیکھیں ایک سوال ہے کہ میڈیا والے بھی بیٹھے اور یہ بھی بیٹھے، مطلب میرا کے پی جی میں چلانی میرا قدر سے ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کی حکومت ابھی بات کی بجائے کہ کمرے میں بیٹھ کے باتیں کریں کہ بھائی ان کے پاس کیا پلان ہے اور اس پلان کو ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے. اوکے ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں ان سے ہم ابھی اس کا جواب لیں گے. ول ٹیک another کال ہے. اب دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نارووال سے جبار چیمہ بات کر رہا ہوں. جی چیمہ صاحب نارووال کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں کی یہ پوزیشن ہے کہ لائٹ صبح جاتی ہے 4 گھنٹے دیکھنے کو نہیں ملتی، پھر 1 گھنٹہ آتی ہے 5 گھنٹے پھر چلی جاتی ہے. اب یہ کیفیت ہے کہ
किसी को कुछ भी ना कोई कहने को तैयार है ना कह सकता है। और जो बिजनेस है हमारे चीमा साहब ये बताइए कि ये जो आपके दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन है, ये इनकी क्या पोजीशन है? ये दुकानें खोल के बैठे हैं बिजली के बगैर कि बंद है, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये इस तरह बैठे हैं कि जिस तरह इनका कोई वाली बारिश नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हजूर ये दुआ कर रहे हैं कि ये जो इधर कोट टाइम करा कर बैठ जाते ना आपके सामने और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। हम तो पहले निराशों से बातें सुना करते थे, कहानियां सुना करते थे, अब इनसे सुनते हैं। ओके चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। कबीर वाला चलते हैं, यहाँ क्या पोजीशन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये क्या पोजीशन है जी कबीर वाला की बिजली की? सर 21 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मेरा एक सवाल है सर आपसे जी। ये जो 15 अरब दिया गया है गवर्नमेंट ने वापडा को दिया है, वो कहाँ गया है? लोड शेडिंग तो और बढ़ गई है। ओके, ये जो कहाँ सब्सिडी की है, लोड शेडिंग और बढ़ गई, इस पर भी हम जवाब देंगे। आप जरा शेख साहब दीजिएगा इस पर जवाब। लेट्स टेक दिस नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अच्छा एक सेकंड, कॉल एक सेकंड रोकिए। मुझे ये बताइए, आईपीपीसी की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट गारंटी करती है कि आईपीपी जो है उनको गारंटी करती है कि 17% आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये 80% कैसे प्रॉफिट ले रहे हैं आईपीपी, ये मुझे बताइए। हाउ इज देयर नोबडी टू चेक कि आईपीपी जो है इंस्टेड ऑफ 17% जो कि गारंटी है गवर्नमेंट की, ये 80% पे प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। मारा कौन जा रहा है? आपका कंज्यूमर। वाई? मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है, ये तो आईपीपीज वाले जो है वो बता सकते हैं जी। 17% गालिबन नहीं, मुझे जहां तक याद है ये 14 या 15% जो है वो गारंटी हुआ है और वो टैरिफ के अंदर होता है। जब टैरिफ अवार्ड करता है नेपरा किसी पावर प्रोजेक्ट को, तो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में मिला के एक रेट। तो फिर नेपरा यहाँ चेक क्यों नहीं करता? ये तो टैरिफ की ये बात करें नेपरा की, आप बताइए क्यों नहीं चेक करता? ये तो आप ही का एरिया है। गवर्नेंस इट इज द बॉडी सिटिंग देयर जो इसका इंचार्ज है, जिसके जिम्मे चीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने इन दोनों का जवाब देना है, लेकिन लेट्स गो टू सियालकोट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। जी सियालकोट की क्या पोजीशन है जी, जरा बताइए। ये सब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है इधर। कितने घंटे? आइंदा आने वाले में हालात तो सब वफाकी वजीर बढ़ रहे हैं, पानी बिजली, क्या ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी सियालकोट की? कम से कम 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नहीं जी, इंशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब जरूर करेंगे। ये बिल्कुल अभी इनको नॉमिनेट किया गया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये ठीक करेंगे, बट टाइम बताएगा। आप बताइए जी, ये जो बिजनेसमैन जो ये शोर कर रहे हैं, अब बिजनेसमैन का इनका इमीडिएट रिलीफ क्या है? इनका तो बिजनेस नीचे जा रहा है, विच मीन्स योर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, विच मीन्स देयर इज नो प्रोडक्शन, जैसे आपने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइट। व्हाट आर वी डूइंग? वी डूइंग नथिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, वी डिड नथिंग। और अब ये देखने की जब भी इसके ऊपर हमने बात की है तो वो कह रहे हैं जी हम इसको कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, हम इसके ऊपर ये करेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। पिछले 5 साल में आप ये देखें, मैं तो इस चीज पे बड़ी हैरानी है कि पिछले 5 साल में आपके 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, 4 आपके गवर्नर स्टेट बैंक चेंज हुए, 3 आपके कॉमर्स के मिनिस्टर चेंज हुए, 2 आपके सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज हुए। एक ऐसी जगह है जहां शदीद गर्मी पड़ती है, सऊदी अरेबिया, वहां तो बिजली मिलती है, लेकिन जद्दा से ये कॉल है। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक, फरमाइए। सर बिजली का पाकिस्तान में इतना बुरान है, बहुत ज्यादा, लेकिन इसका कोई हल मुस्तकबिल के लिए लोगों के पास नहीं है। मैंने यहाँ पे एक जनरेटर छोटा सा लगाया हुआ है जो 3 घंटे चल रहा है मेरे पास 2 महीने से। ये कितने सिर्फ आते, अगर छोटा सा बना पाते तो मैं इसको बड़ा नहीं बना सकता। जितनी चाहिए बिजली आपको एक का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो किस तरह का बात कर दिया, जंगल को तो अरबों रुपए लगाना, तेल रोजाना का 2 अरब रुपए का पाकिस्तान में तेल यूज है और बिजली फिर भी पूरी नहीं हो रही। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जितने अजीब बैठे हुए हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूँ, मैं मतलब जितने मर्जी जनरेटर चाहिए आपको उसके अंदर फिर लगेगा। चलो ये बड़ी अच्छी बात है, आप ये सजेशन दे रहे हैं। प्रोग्राम के बाद आप प्लीज इसी नंबर पर कॉल कीजिए, आपके कॉन्टेक्ट लेके अगर ये अच्छी सजेशन और सिचुएशन है तो जो रिलेवेंट अथॉरिटी है, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब आगे इनको दे देंगे इंशाल्लाह, ये भी इस पर देखेंगे, नजर करेंगे। हाफसाबाद में क्या हो रहा है? लेट्स सी इन हाफसाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, समाज से नहीं बटी बात कर रहा हूँ जी भट्टी साहब, क्या पोजीशन है हाफिजाबाद की? हाफिजाबाद की तकरीबन 22 से 23 घंटे की लोड शेडिंग है, 1 घंटा भी नहीं आ रही। आज सुबह 11 बजे से गई हुई है, तो अभी आई है तो आधा घंटे बाद चली गई है। अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो लाइट चली गई है। ये मेरा कोई कसूर नहीं है जी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले ही है, अल्लाह पे खैर करे। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बिजली ठीक होगी, लेकिन कब ठीक होगी ये बताएंगे। ये बता रहे हैं जी कि सस्ती बिजली बना सकते हैं आप, बायोगैस पे आप काम कर रहे हैं। देख रहे बायोगैस के अंदर पोटेंशियल बढ़े हैं पाकिस्तान में। हम जब आए पाकिस्तान तो हमने इस्लामाबाद से शुरू किया कि वहाँ का जो जितना भी गंद है भाई पहले उसे साफ किया जाए, फिर लाहौर इस तरीके से भरा जाए। जब हम कराची पहुंचे तो जब हमने वहाँ जाके समुंदर देखा तो हमने सोचा कि ये जो जहाँ से ये गंद आ रहा है पहले तो वहाँ जाके देखते हैं कि भाई गंद कहाँ से आ रहा है। तो पता चला जी कि ये यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गायें और भैंसें और यानी कि भैंस कॉलोनी यहाँ से ये गंद जाता है। ये किधर से? कराची से? ये कराची से। एक सेकंड जरा कराची चलते हैं, फिर मलीर चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप मलीर बताइए कि मलीर कैंट में ये क्या पोजीशन है आपकी बिजली की वहाँ? हेलो जी जी हाँ, ये बिजली का हो रहा है, इसकी वजह से हम बात करना चाह रहे हैं। जी कीजिए बात। तो बात किससे करूं? आप यही करें, सिग्नल वाले से बात करनी है ना। ये आप चैनल पे ही हैं। आप अगर आपके पास अच्छा। टेलीविजन, जी अच्छा आई थिंक ये जरा इंटरफेरेंस इसके अंदर। विल टेक अनदर कॉल है, लेट्स सी। अब कौन है लाइन पे? हेलो हेलो, जी वालेकुम सलाम। मीर साहब एतबार से सरदार फैसल बात कर रहा हूँ। जी जी क्या पोजीशन है आपकी बिजली की? मीर साहब छोटा सा शहर है, लेकिन पोजीशन तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खराब हमारे जिले की है। वो कैसे? वो इस तरह कि कोई एक टाइम होता है कि चले किसी को पता चलता है 2 घंटे के बाद आएगी, 3 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद। यहाँ पे बिल्कुल कोई टाइम नहीं है बंद करने का। अगर किसी से मालूमात लेनी हो उसके लिए भी आपको इतनी एक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जवाबदेह कोई भी नहीं है। और ये बिजली आती है जाती है बगैर बताए बगैर आए। यानी कि आज सुबह मैं ऑफिस गया हूँ तो 9 बजे गई है, 6:30 बजे आई है। और मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूँ, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, 6 से लेकर रात 10 बजे तक बिजली का टैरिफ चेंज है। ये सारा दिन बंद करते हैं। जो इनका गैप है जो बिजली बनाने में और जो के अखराजात हैं उनको बराबर करने में रात को 6 से 10 तक बिजली देते हैं, 10 बजे बंद होती है, रात को 2:30 बजे आती है। फिर ओके थैंक यू, ये तो आपका पॉइंट नोट कर लिया। रावलपिंडी की क्या पोजीशन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ, चूड़ का इलाका, ये वेस्टर्न दिल्ली में। जी जी ये हमारे यहाँ इस तरह है कि बिजली का जिस वक्त हमारी 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की है और फिर आधे घंटे के बाद फिर बंद कर देते हैं, 15 मिनट लेके फिर जवाब में देते हैं। घंटा जब होता है हमारा उसके बाद फिर 3.5 घंटे चली जाती है। सूरत हालत और रात को हम क्या कर सारा दिन आज पता है रात में गर्मी इतनी पड़ रही है तो शहरों के आपको पता है सूरत हालत में छोटे छोटे घर हैं लोगों के, इतना मसले मसाइल है, कोई इसका हल नहीं है। और ये मिस मैनेजमेंट है ये सारा। जहाँ पे हम देखते ना हमारा पता है हमें 3 घंटे की लोड शेडिंग करनी है, एक तरीका कार होता है। और यहाँ कोई किसी को नहीं बताया किसी को भी। तो ये तो पूछने वाला इनको कोई नहीं है। हालांकि हमारा वो कैंट का एरिया जैसे मतलब जनरल हेडक्वार्टर के पूछने वाला इस पे अभी इस पे और बात करते हैं। ये जरा बताइएगा आप भी जी, ये किसको पकड़ना है क्या नहीं करना है ये आपने बताना है। एक और कॉल लेते हैं यहाँ, फिर जरा पैनल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी अहमदाबाद की क्या पोजीशन है? अहमदाबाद में सारी बिजली आती है जाती 4-4 घंटे बिजली नहीं आती। अल्लाह ने इधर ठंड तो है इधर, कारण ये लोग आपके सामने बैठे हैं, मैं भी देख रहा हूँ इधर। तो जो किराए पर बिजली चला रहे हैं 3 मन ला रहे हैं पाकिस्तान जी है, क्यों नहीं बिजली ला रहे? कभी एक सूरत मैंने क्यों नहीं लिया है जरदारी साहब का अधिकार में, तो क्यों नहीं इधर बिजली ली? मतलब मुल्क में सूरत लग रही है
सहूलत लेनी चाहिए। मुल्क का जरूरत निकल जाती है बनने में दिल्ली बनना कभी इस तरह मुल्क निकल जाता है। ओके, थैंक यू। आपके बात की भी पोजीशन 4-5 घंटे। लेट्स गो बैक टू कराची, देखेंगे यहाँ कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपने जब ये गवर्नमेंट पार्टी की उस वक्त लोड शेडिंग का मसला था और कहा कि हम ऐसा सेटअप करके देते हैं कि 5 साल के बाद ऑफ हो जाए, क्यों नहीं सोचते सारे महकमे जो है सारे बिजली का मिल जाए, ये पहले क्यों नहीं सोचते? ओके, फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों नहीं? ओके, लेट्स टेक दिस नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, ओके कॉलर्स, ये देख लें, अब आप चारों देख लें कि देखें, फॉरगेट द पार्टी, कौन पीपल्स पार्टी, कौन मुस्लिम लीग, कौन कहां, कौन क्या, ये अवाम है और पाकिस्तानी अवाम है और जो सफर कर रही है और बहुत बुरा सफर कर रही है। आपने गवर्नेंस की निशानदेही की, आपने कहा कि आपको काम कोई नहीं करने देता। आप जो पॉलिटिशियंस हैं, आप कहते हैं हम वादा करते हैं हम लेके आएंगे, आप कहते हैं आप बिजनेसमैन हैं, हमारी तो प्रॉब्लम ही खराब है, हम तो काम नहीं कर सकते। आपका बिल पहले 12 लाख है, अब 24 लाख आप दे रहे हैं उसके ऊपर ऑन जनरेटर्स। So what are we doing with this economy? How do you think ये जो गवर्नमेंट अब आई है, what is it, ये क्या करेंगे? क्योंकि तो आप तो इस गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाएंगे, ये तो हालत है आपकी इस वक्त। बिल्कुल जी, हमने तहरीक इंसाफ ने आज से तकरीबन 1 साल पहले अपनी पूरी तवानाई की पॉलिसी जो थी रूनुमा की थी और उसमें एक पूरा मनसूबा दिया था। आपने शुरू में किसी कॉलर के हवाले से भी कहा था ना कि हम पूछते हैं आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं। अब वो मनसूबा इस मफरूजे पर मबनी था कि तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनाएगी और उसमें बहुत से एलिमेंट्स थी, एनर्जी मिक्स को चेंज करना, और हमारा वादा यही रहा है कि हम 2 साल, क्योंकि हमारे नजदीक वही रियलिस्टिक जमीनी हकायक से जो है मुताबिकत रखते हुए पॉलिसी थी कि 2 साल के अंदर लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। तो अगर आप आते वलीद साहब अब पावर में, तो आपके पास भी 2 साल का पीरियड था जिसमें आप मुहैया कर, जी, क्योंकि खुसूसन पिछली हुकूमतों के पास 5 साल रहे और उसमें वो नहीं कर सके। तो 2 साल हमने ये महसूस किया था, एनर्जी मिक्स चेंज करने से, रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने से, जो वेस्टेज होता है उनको अपना काम करने से, कौमियाई गए इदारों को बेहतर चलाने से, वसाइल इस तरफ करेंगे डाइवर्ट तवानाई की तरफ, बिजली की तरफ, ताकि वो बेहतर सिस्टम बन सके। लाइन लॉसेज को हम 20% से 10% पे लाने का मतलब, चलिए ये तो लॉजिस्टिक्स हो गया। अच्छा, मैं एक और एलिमेंट उसका है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने इस हद तक तो कामयाबी दी है तहरीक इंसाफ को कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ उसको इसकी क़यादत कर रही है मखलूक की। उस हवाले से हमारी एक शिकायत जो पंजाब हुकूमत से रही है पिछले 5 सालों की कारकर्दगी के हवाले से, वो यही थी कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुकूमतों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बिजली घर बनाएं, वो ग्रिड स्टेशन बनाएं, वो ट्रांसमिशन लाइन्स ले करें, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरजीहात में बिजली का बनाना नहीं। पंजाब हुकूमत आ गई है, अब आ गई है, अब तो वफाकी हुकूमत भी बज़ाहिर जो है आ रही है। हमने तो हमने इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बहुत एहतसाब करना है, अभी हमारा एहतजाज जारी है, लेकिन जिस हद तक एक सूबाई हुकूमत इस हवाले से कर सकती है, उस सूबे की इंशाल्लाह पूरा टैक्सिंग में क्या हो रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। टोबर टैक्सिंग की क्या पोजीशन है बिजली की? टोबर टैक्सिंग में बस ऐसी पोजीशन है, आती नहीं है लाइट सारा दिन। नहीं, कुछ तो आती होगी बिजली, बस एक आधा घंटे ही आई होती है, पूरा दिन ही नहीं आ रहा। ये देख लें। अब आप मुझे बताइए शेख साहब के इस वक्त जो बिजनेसेस हैं ये सरवाइव करेंगे? ये 2 साल का कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं जी? अब ये हुकूमत आई है, ये कितना टाइम लगाएगी? उनके पास देखे, अगर हम कमा चौक की तरफ देखें तो जो वो कमिटमेंट करते हैं देखें नहीं, देखें ये रिटोरिक्स पे हमने नहीं जाना। आई नीड एन आंसर रियलिस्टिकली, यूर एन एक्सपर्ट। रियलिस्टिक देखें कि अब वो इंडिया के साथ पहली बात उन्होंने की है, तो अगर नियरेस्ट जो सबसे इस वक्त आसान हमारे पास ऑप्शन है वो इंडिया वाली है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग। एक आम आदमी ये देखें ना, ये अटक में बैठे, अटक जी अस्सलाम वालेकुम। आप अटक में, मुझे बताएं अटक की क्या पोजीशन है? लाइट की पोजीशन है कि जी रात को अभी जाएगी यहाँ पे तकरीबन 8 या 7 बजे शाम को चली जाएगी और रात को 12-1 बजे जाएगी और सुबह फिर 4 बजे जाएगी। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी हमने करनी होती है, हम कैसे स्टडी करेंगे? इन लोगों को सारे आपके 4 बजे बैठे हैं, इनसे पूछे कि इनके घरों में भीड़ होती है। ओके, चले अटक से चलते हैं कराची, देखिए यहाँ क्या हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी फरमाइए। अब आप बताइए कि कराची की क्या पोजीशन है? आप किस एरिया से बात कर रहे हैं वहाँ? मैं डिफेंस से बात कर रहा हूँ।
डिफेंस में तो ठीक होनी चाहिए बिजली। डिफेंस में ठीक है बिजली। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, कल आपके प्रोग्राम में था अब्दुल और शाह जी, उन्होंने सलीम साहब के मतलब में कोई शिकायतें बड़ी की थी जी, शिकायतों का बड़ा अंदाज लगाया था। ये जो लाइन लॉसेज है इनसे क्यों नहीं रिकवर करते, किसी साजिश के हवाले करो उनको। ओके, क्यों जी, ये बताइए। हाँ आप बताइए। इसका जवाब मैं सर देता हूँ कि 98% रिकवरी है पंजाब में, और जो थेफ्ट है ना आप देखिए सिंध में, कराची में 38% है। और कराची को इन्होंने 2011 में 1 अरब रुपया दिया KVSC को, फिर उन्होंने 2012 में उसको 23 अरब रुपया दिया, जबकि वहाँ पे थेफ्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 38% है वहाँ पे। पंजाब में तो 98% रिकवरी, और थेफ्ट का जो ग्राफ था वो तकरीबन 7% था उससे पहले। शेख साहब इस वक्त आप और ये सब बताएंगे जी 2 साल, 1 साल, 1.5 साल। मुझे ये बताइए कि इमीडिएटली अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि इनके जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, कल जो कह रहे थे जी 2-2 लाख है या 3-3 करोड़ या ये जो खा रहे हैं पैसे, इनको इमीडिएटली पकड़ के निकालें। और आप बताइए कि आपके पास बिजली मौजूद है कि अगर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हो ये कम हो। देखेंगे कि मैं पहले भी मैंने बात की कि अगर लोड इनके पास, अगर लोड पूरी प्रॉपर इनके पास है कि लोड हमारी डिमांड कितनी है, और उसके बाद फिर शॉर्टफॉल आता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसके बाद लोड शेड डिमांड अभी डिमांड क्या है पाकिस्तान? अभी डिमांड पाकिस्तान की इस वक्त जो चले 16,000। आपके पास इस वक्त कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 18 जो हमारे पास 18,000 है इंस्टॉल कैपेसिटी। तो आपके पास कैपेसिटी इस वक्त जनरेशन की है 18,000। इसको हम शॉर्टफॉल को कैसे ब्रिज करें? लेकिन अगर डिमांड जो इस वक्त 16,000 सप्लाई 10 कैसे करेंगे आप? अब इसमें देखिए, एक तो फ्यूल है ना, फ्यूल आ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए, वो अगर फ्यूल आ गया तो 3-4 घंटे का तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाएगा। मसला सिर्फ ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी अवेलेबल पावर, जो अब ये लोग बैठे हैं इनको चाहिए कि कंप्लेंट करें, अपने बताएं कि शेड्यूल हर रोज कंप्लेंट करें। ये देखिए मुल्तान में कौन है, एक सेकंड जी, लेट्स गो टू मुल्तान, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सफर ये कर रहे हैं। यहाँ तो चले बिजली फिर भी आ रही है, वो भी जनरेटर पे, तो यहाँ क्या कह रहे हैं जी आप मुल्तान से? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मुल्तान से जी? सर यहाँ पे तकरीबन 4-4 घंटे लाइट दिन की जा रही है और 1 घंटा आ रही है, और इनको चाइना ने, पाकिस्तान को चाइना ने कहा था कि बिहार हमसे लाइट का कट कर ले, तो ये क्यों नहीं करते? ओके, ऑल राइट, इसमें भी हम बात करेंगे, ये पैनल हमें बताते हैं इस पे। अगला कॉलर देखते हैं कौन है। हेलो जी, सलाम वाली बात लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज का जो है सिलसिला शुरू किया गया, गुज़श्ता 5 सालों से ये दावे किए जा रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अब निगरान हुकूमत तशरीफ लाई है, यहाँ मुस्तकिल मलिक साहब फरमा रहे हैं कि 20 अरब रुपये जारी किए गए हैं साथ हुकूमत की जाने से, और वो हमें अभी तक नहीं मिले। और क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कौन इन 20 अरब के इंतजार में बैठी होगी कि 20 अरब कब मिलेंगे, कब ये लोड शेडिंग के खिलाफ दमाद करेंगे, और कब ये कब ये खत्म हो गया? पूछता हूँ इनसे कि ये कब खत्म होगी लोड शेडिंग? क्या निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं थी? उन्होंने क्यों चार्ज लिया ये वजारत का, और अब ये सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पे डाल रहे हैं? ये खुद क्या कुछ नहीं कर सकते? क्यों जी, कब खत्म होगी? ये एक आम आदमी का सवाल है, कब खत्म होगी? ये इसका जवाब मुझे बताएं। आप आप पॉलिटिशियन है, आप वादे करते हैं, आप कहते हैं कि बैड गवर्नेंस है, आप इन्हीं को अपॉइंट करते हैं, इन्हीं को कहते हैं काम करो, फिर आप कहते हैं ये गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, फिर वो कहते हैं जी आप हमें ठीक करो। मुझे बताइए क्या मेरे पास एक गुजारिश सुन लें। बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ दुनिया का, उसने कहा था कि आप एक काम एक ही प्रोसेस के जरिए करते जाओ तो रिजल्ट वही निकलेगा। आप एक पाकिस्तानी से 18 करोड़ पाकिस्तानियों से आप शिकायत सुने तो वो एक ही शिकायत करेंगे। असल में चाहिए क्या? चाहिए तो हल है कि इसका हल कैसे निकल सकता है और कितनी जल्दी निकल सकता है। तो जावेद मेरे पास है। जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सऊदी अरब आपको दे रहा है 3 साल के लिए कोई 15 अरब डॉलर का तेल। एक तो फौरी तौर पे इसको लेना चाहिए और स्पेशली फौरी तौर पे इससे फायदा उठाना चाहिए कि 3 साल बाद अपने पेमेंट देनी। एक फौरी लिफ्ट तो आपको गवर्नमेंट को अपनी कौम को देंगे ना, जो कि करब और मुब्तला आपके सामने आप लोगों ने बताया। फिर मेरा ख्याल है तमाम सियासी मफादात से बालातर होकर सर्किट डेट को फौरी तौर पर काबू करना चाहिए।
ना दहिंदगान से वाजपेयी की वसूली की खास जरूरत नहीं। कैसे काबू करेंगे? तो मैं उसकी बताता हूँ। उसमें 2-3 चीजें। सर्कुलर डेट की वजह क्या थी? आपको पता है कि पिछली बार आपका पीए का लॉस था 171 बिलियन, आपका रेलवे का लॉस था 42 बिलियन, आपका स्टील मिल का लॉस था 22 बिलियन। और आपने इन सारे पैसों को आप देखेंगे, आप इसको इतने पैसे देने के बावजूद वो जो व्हाइट एलिफेंट बन गए, वो सारे पैसे खाए गए, करप्शन में गए सारे। आप इसको करप्शन को कंट्रोल करेंगे तो सर्कुलर डेट आपका ठीक होगा ना। अब इसमें 2-3 चीजें और बताता हूँ आपको। अब आप जब 22 रुपए 24 रुपए का यूनिट बना के 10 रुपए का उसको सेल कर रहे, तो सीधी सी बात है ना कि 22 रुपए का यूनिट बना के 10 रुपए का सेल कर रहे हैं, 12 रुपए का डेफिसिट तो इसी में गया ना। इसलिए मैं जरा गुजारिश करता हूं कि ये जो है ये चीजें जो जिसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है, इसमें सारी पब्लिक को, सबको मिलके, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को, डिपार्टमेंट्स को, सबको मिलके इस बला से जान छूट सकती है। अदरवाइज ये अगर खाली सबसे पहले हमारे मौजूद है। आप जब सीईओ थे लेस्को के, आपने उन चोरों को पकड़ा है जो कि पहले नहीं पकड़े गए, आपने ट्रांसफार्मर्स लोगों के घरों से निकलवाए, आपने ग्रिड स्टेशंस पकड़े, आपने ऐसी ऐसी चीजें पकड़ी हैं। मुझे बताइए, अगर आप पकड़ सकते हैं ये बाकी क्यों नहीं पकड़ते? देखिए ना कि एक वही मैं कहता हूँ गवर्नेंस की बात है कि टीम की बात है। हमने एक टीम बनाई, उसमें ये हमारे सीईओ साहब उसके टीम के बल्कि हेड थे, लेकिन अब इस पे इल्जाम है, लेकिन मे बी कि उसके पास वो टीम और वो स्ट्रांग, मैं उसकी ये तो नहीं कि कसम उठा रहा हूँ उसको इतना, लेकिन मैं भी कॉम्पिटेंट एंड जूनियर टीम का मैनेजर था, कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट दैट स्ट्रांग। और ही इज नॉट दैट स्ट्रांग। ओके, विल जी जस्ट टेक लास्ट 2 कॉल्स फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अजीम, जिस तरह ये सब ये चल रहा है कराची का माहौल, हमारे साथ होटल महाजरा सर्विस हो रहा है। वजह यह है कि एक सियासी जंग यहाँ पे भी है। जिन एरिया ने मुत्तहदा को वोट दिए उन एरिया बिल्कुल बहाल है, और जो एंटी मुत्तहदा है उन सब एरिया को बिल्कुल डाक करा हुआ है। आज ये दूसरा दिन है और यहाँ ये कंडीशन है, शायद मॉडल कॉलोनी का नाम सुना होगा आपने, तो मॉडल कॉलोनी की कंडीशन ये है कि वहाँ पे लाइट, लेकिन जो एरिया उनके एंटी है उन एरिया में लाइट नहीं है। वो इस जगह से नवाज शरीफ के मेरे साथ हम तक निकल लोग हैं, मगर हमने ये नोट करा है कराची में कि एक पॉलिटिकल जो रिवेंज हो रहा है ना वो हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि इसका इनकी रिवेंज से वो परेशानी हो रही है, जो आवाम है ना वो जिस तरह परेशान हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो फेवर में गया उसको बिजली मिली, जो एंटी है उसको बिजली नहीं मिल रही। Is that it? Okay, all right, thank you very much. एक और कॉल है, let's take this last caller. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। साहब, तमाम लोगों को जो मोहसिन हमारे बैठे हैं इनको सलाम, और मैं औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 3.5 घंटे लाइट जा रही है। थोड़ा सा मेरा इशू मैं हट के बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि ऐड चलता है यहाँ पे कि आप जो है एनर्जी सेव करें। अब जब हम लोग एनर्जी सेव करते हैं और कम जलाते हैं बिजली और इतनी लाइट जा रही है, यूनिट जब कम बढ़ते हैं तो उसमें पता ये चलता है कि जब बिल आता है तो उसमें वो जो है वो कहते हैं कि आपने यूनिट चोरी की है, और फिर वही डबल होता है, इसका एक एक्स्ट्रा एडिशनल बिल लगा के और दे देते हैं कि आप जो है ना चलाते रहे चोरी है। इनकी इतनी हिम्मत होती नहीं है कि ये जो पिल्ले जलते हैं, पिल्ले लगे हैं ये मेन तार पे, इनको हटाते हैं। ओके, कुंडे क्यों जी, कुंडे जो लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ये करे वो करे। सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आपने पूरा पाकिस्तान में जो बिजली का है इदारा, ये इसको कैसे हम रिफॉर्म करें, कम से कम कुछ तो डैमेज कंट्रोल हो। अब ये इसमें देखें कि रात को जब कुंडे लगे होते हैं, अब उसके उस वक्त क्या हमारे पास क्या फोर्स होती है। ये जो बॉर्डर एरिया है इसमें लोग हमारे लेस्को के रेड करने जाते रहे, आगे से क्रॉस फायरिंग होती थी। अब वापडा के पास या लेस्को के पास इतनी फोर्स है तो पुलिस आगे जबरदस्त पुलिस लेके जाए, वो पुलिस उनके पास हौसला कम होता है, उनके पास हौसला ज्यादा होता है। मैं इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ आपसे, इससे मैं डिफर करता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमने पिछले 65 साल से अपनी स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं कर सके, हालांकि सिर्फ बॉर्डर्स पे आपने कंट्रोल करना है, तो हम कुछ करना चाहेंगे तो होगा ना, बिल्कुल हम कर ही नहीं रहे इसके ऊपर। देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, हम शॉर्ट टर्म और अपना लॉन्ग टर्म प्लान, हमने किसी के ऊपर भी काम हमें शॉर्ट टर्म भी करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म भी करना, शॉर्ट टर्म। हम आपसे आई इनवाइट ऑल 4 ऑफ यू अगेन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है,
لیکن یہ جو پلانز ہے لانگ ٹرم سیکنڈ کی بات ایک سن لیں آدھا سیکنڈ ہمارے پاس 2030 تک کا پلان پورا موجود ہے، اس میں 2013 تک 2016 میں لوڈ شیڈنگ جو ہے ہماری پلاننگ کے مطابق، ہماری پلاننگ کے مطابق ٹوٹل 2016 میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی ایز پر آور پلاننگ. اگر اس کے اوپر جن لوگوں نے کام کرنا اگر وہ کام کریں تو. مجھے بھی بطور سیاستدان آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کب ختم ہوگی یہ لوڈ شیڈنگ. میرا تحریک انصاف کے حوالے سے تو جواب یہی ہوتا کہ جی 2 سال میں، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. لیکن موجودہ حکومت جو آنے والی ہے اب اس پہ بھی ہم الیکشن کمیشن سے حساب لے رہے ہیں، اس میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم 1.5 سال میں ختم کریں گے. اس لیے میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں 1 جون کے آس پاس نئی حکومت اپنا عہدہ لے لے گی. 31 دسمبر 2014 تک ان کا وعدہ ہے. اگر 1.5 سال یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، عوام کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اگر 31 دسمبر 2014 کو یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی بقول ان کے وعدے کے، تو پھر ان سے اگلے ووٹ میں احتساب کریے. چلیں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ. صدر صاحب تھینک یو ویری مچ، شاہد صاحب تھینک یو، ولید تھینک یو، شیخ صاحب تھینک یو، اینڈ تھینک یو جتنے بھی کالرز ہیں. میں ان کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو آئندہ پروگرامز ہوں گے اس میں آپ کی شمولیت زیادہ ہم رکھیں گے، کیونکہ آپ کی آواز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی بہت ضروری آواز ہے. یہ عوام کی آواز ہے، کیونکہ اس عوام کی آواز کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہی چیز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بجلی کا جو بحران ہے، آپ جتنا زور سے بولیں گے یہ جتنے بھی حکمران ہیں، جو لیڈرز ہیں یا پلیڈرز ہیں، یہ ان کی کانوں میں جائے گی آواز. اور ہوپ فلی جیسے ولید کہہ رہے ہیں کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے اس نے 1.5 سال کا وعدہ کیا ہے، لیکن بات اینڈ میں وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں where there is a will there is a way. جہاں اگر آپ کی نیت ہے کہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو پھر لٹکاتے جائیں یہاں بھی، لٹکاتے جائیں وہاں بھی، کیونکہ اس شخص میں نیت ہے ہی نہیں تو اس نے کام کرنا ہے. آج وہ وقت ہے کہ نیت بنانی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. وی ہوپ اینڈ وی ہوپ سنسیئرلی. خدا حافظ.